Certain events change the course of human history. They change how people live, how societies function. But they also impact the vulnerable the most. COVID-19 is one such event. We don't know when our lives will go back to being what they used to be. But what about them? With this question in mind, two journalists from Asiaville, Shrutin and Dibyut, left their homes in the middle of the raging pandemic to make people out of statistics. To find their story, to report from the ground. 600 kilometers over 12 days, covering one cataclysmic disruption that made people migrants and destroyed livelihoods like never before. Asiaville presents the Corona Cyclops. Yeah, you are right. But you can come to the bike shop here. I will call my car. Hello, sir. You're Delhi to Lucknow, right? Yeah. You just have to be well hydrated now because the sun is really on the boom right now, right? So just take care. You keep yourself well hydrated. Salt intake should be more. Orange juice will be all through the route. Oh. So make sure you have a citrus all through the route, all right? And helmet is must, which I'm giving right now. Shades. Yeah, we got Right? it. And take small hauls and move on. Don't take long hauls because the more you take long hauls, body will cool down. Then again you will take energy to get to perform. Hey, so starting the journey from CR Park, I'm going to meet Shrutin. I'm just going to follow the map, and whoever reaches first sends a WhatsApp location, and that's how we find each other. It's actually the Noida highway. It's on the way to Agra, but we are taking another route, the Mathura road. We are approaching Delhi Haryana border. Basically, people are sent back if they are found to be traveling by walking. This is scenes from right after we entered Haryana. This is a textile company, and so these people are coming to work like in hordes. They're walking from the border from Delhi to this is Haryana over here. 50% आ रहा है और अदरवाइज बाकी का सब लोग ये बैंड टू देयर नेटिव प्लेस। मतलब लोगों को निकाल भी दिया है। ओह, बहुत अभी काम चल रहा है, काम कम होगा तो निकाल देगा, काम नहीं रहता तो निकाल देगा। तो आपको पिछले 2 महीने कुछ सैलरी कुछ नहीं मिला? जो काम किए थे वही मिला। ओह, पहले वाला। Factories in Faridabad had already started functioning. Though much of the workers had left, but there was already a demand for laborers. And everybody is the same. खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं है. कैसे चला last 2 महीने on our whatever savings that we had. So people have literally broke all their savings on the last 2 months. The impact wasn't just two-dimensional. Since the livelihoods are often interconnected, people depending on the industries were hit hard as well. जो मजदूर भाई ये निकल रहे, जो बाहर के वो सब बंदे निकल गए, वही तो हमारे लेने वाले, तो उससे हमारी दुकानदारी चलती थी। अब कुछ भी दुकानदारी नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। हम लवार है राजपूत, हम लोहा पीटते हैं, दराती, खुरपे, चलनी ये बनाते हैं हम। फिर ये इसका काम नहीं चला, जब ये मजबूरी में ये काम करना पड़ा। पैसा जो पहले पब्लिक थी वो पब्लिक कम है चुके, लोग अपने काम जा चुके हैं। तो लोग आगे रहेंगे तो काम रहेगा, लोग आगे नहीं रहेंगे तो काम कैसे रहेगा? आप लगा लो, कंपनी बंद पड़ी है। कंपनी बंद की वजह से जो दुकानदारी है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। पर डे की यही 3300-4000 के लगभग थी पर डे की सेल, और अब 500-700 रुपये है कुल। Now, why are we on this journey in this smoldering heat? Because
because there are still people walking down on the road. There are still people who are on foot. They are walking with their children, who are literally looking at someone else. They don't know who this person is for a morsel of food, and they are out of job, out of luck, out of business. जी आप कहाँ से आ रहे हो? सर रेवाड़ी से आए हुए हैं। बच्चे हैं, माँ पिताजी है, हम हैं, बीवी है, और यानी संगी साथी है, सब लोग हैं, तो परेशान थे इसलिए आने पड़ता था वहाँ से। कितने दिन हो गए चल रहे हो आप लोग? हमको यानी 3 दिन हो चुका उधर से आते आते। वो अब आगे के लिए जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपना गांव पहुंच जाए, कैसे ही पहुंचे लेकिन गांव पहुंचना चाहिए। तो सरकार तो कह रही है कि ट्रेन मिल रहा है, ट्रेन में क्यों नहीं अप्लाई किए? सर सब कह रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी को कौन रास्ता बता रहा है? सब बता रहे हैं कि चल रही है, कहीं ई पास बना के लाओ, वो करके ले आओ। सर कोई सुन नहीं रहा है ना, हमारी बात तो ये है ना, ये कमी है। अब हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है ना, तो हम तो पैदल ही जाना चाहते हैं। कोई तो आपने कोशिश की थी ट्रेन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए? हाँ कोशिश की थी, और यानी हर प्रयास सब कुछ किया, थाने भी गए थे लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ हमारे। रेवाड़ी में क्या काम करते हो आप? यही मजदूरी करते थे। वो ठेकेदार था हमारा, तो सामान हमारे शिफ्ट करके वो कहीं निकल गया। पैसे मिला है? काम ही नहीं कर पाया तो पैसे कहाँ से मिलेगा? जब से लॉकडाउन लग गया तो काम ही बंद रहा। बल्लभगढ़ तक हम जाते हैं, और इस तरफ हम 37 से लेके बल्लभगढ़ तक हम रोज़ जाते हैं। तो हमें जहाँ पर लोगों दिखते हैं हम उनको पेट भर के खिलाते हैं, और ये हमारा इनिशिएटिव तकरीबन लॉकडाउन से स्टार्ट है। यानी हमने देखा काफ़ी लोग काफ़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जिसके वजह से सारे फ्रेंड ने एक बार हमने मिल के ये इनिशिएटिव उठाया। कितने दिन से चल रहे हो? 3 दिन से चल रहे हैं। तो आपने ट्रेन का अप्लाई क्यों नहीं किया? सर ट्रेन का भी देख लिया जी सर, कहीं कुछ नहीं हो रहा, और ऑनलाइन हो रहा, अब इतने पढ़े लिखे नहीं है, और जो भी जिससे बातचीत करी है उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रहे यही रहो, यही पड़े रहो, ना तो खाना मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। 2 महीने हो गए सर बैठे बैठे, छोटे छोटे बच्चे लेके पड़े, बताओ किसके सहारे रहेंगे? ठेकेदार था वो भी गाँव भाग गया पहले ही, लॉकडाउन से पहले ही। ये जो चल रहे हैं केस आपकी पहचान के हैं? ये सारे सब एक ही गाँव के हैं सारे। करीब करीब कितने लोग होंगे? करीब करीब ये 18-20 आदमी है जी। 18-20 आदमी एक साथ? बच्चे अलग है, छोटे छोटे बच्चे भी ले रखे हैं, आप देख ही रहे हो जी। ये जूते किसके हैं? ये छोटे बच्चे के हैं, ये चुप रहे, उसके पैर में तो चल नहीं पा रही, तो इसलिए कहाँ पे है बच्ची अभी? आगे जा रही है वो मम्मी के साथ। हाँ। All throughout Haryana, the impact of the lockdown wasn't very visible. Perhaps because the state had made relaxations earlier, it also did not have much of incoming migrants to the villages. Shudin, how do you feel, man? Yeah, just 7 more kilometers, no, to the place where we are staying. Yeah. I hope the vehicles won't kill us. Yeah, let's see. चलो, Yeah, let's go. Hey guys, So day 2, it's something 5:30. it's about 5:30. Yeah, 5:30. We are starting from Palwal. Today we have a tough one. Yesterday we covered around 50 kilometers. Yeah. Today it will be 80 actually. So right now we're gonna take the way towards Mathura. So yeah, let's start then. Let's start. Yeah. As we approached the UP border, we started spotting more and more migrants who were getting down at the Haryana side to cross over to Uttar Pradesh. And many of them were angry too. ये सर मजदूर आदमी पैदल पैदल आ रहे थे। अच्छा, तो फिर आपके ट्रक में कैसे आए? इनको बैठा दिया है पुलिस वालों ने, और हम भी बैठा लाए, गैल में मिल गए। तो कहाँ पे? पलवल सर। पलवल में पुलिस वाले बोला कि ये चल रहे थे, हाँ, इनको बिठा लो। कितने लोग थे वैसे? सर ये सब यही लोग हैं, जितने भी हैं 60-70 जो भी हैं। कई बार ले आए, बैठा देते हैं तो ले आते हैं, क्योंकि हमारे को पुलिस वाले परेशान करते हैं, इसलिए नहीं लाते हैं हम। अच्छा। मजदूर पैदल चल रहा है, हमारे को बैठाने में क्या दिक्कत है? परेशान ज़्यादा ही है सर, गरीब लोग परेशान है। हाँ, क्योंकि पैदल जा रहे हैं, सरकार कोई फ़ायदा नहीं कर रही है। यूपी वाले योगी ने तो आप फुल सेवा कर रखी है। अच्छा। हाँ, यूपी वाला तो भेज रहा है बसों में बैठा के, बाकी जगहों पे कुछ नहीं है ऐसा। पैदल आ रही है जनता, दिल्ली से निकल के आ रही है, कोई कहीं रोक लेता है, कोई कहीं रोक लेता है। स्कूलों में डाल देते हैं, 15-20 दिन पड़े रह जाते हैं, गरीब क्या खाएगा?
इंडिया के अंदर कैटेगरी बटी हुई है, तो हम सबसे लोअर कैटेगरी में आते हैं, जो होता है मजदूर। भाई साहब ट्रेनों की इतनी बुरी कंडीशन है, मैं खुद जो है 4-5 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि श्रमिक ट्रेन मिल जाए या वो मिल जाए। नई दिल्ली से मिल रही, फरीदाबाद से निकलने नहीं दे रहे। मैं 2-3 बार पुलिस वालों से बात किया। वो मतलब बॉर्डर क्रॉस नहीं करते? हाँ, वो दिल्ली पुलिस ने? हाँ, बकाया तो ऐसे कि जैसे 4 व्हीलर जा रहा है, इनसे कोरोना नहीं फैल रहा क्या? लेकिन मजदूर जा रहा है तो डंडा उठा लेता है पुलिस वाला है। भाई साहब बहुत यहाँ की सोच बहुत गलत है। कुल मिला के निम्न स्तर के आदमियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, इतनी गलत सोच है। अरे जो 4 व्हीलर से जाता है वो भी तो, कोरोना किसने फैलाया इस देश में? पहला सवाल, किसने फैलाया इस देश में कोरोना? अमीर आदमी लाया है हवाई जहाज़ से और डंडे खा रहा है गरीब आदमी। किसी का अमीर आदमी में किसी पुलिस वाले ने एक डंडा मारा क्या? लिटा के मारा है, मैंने वीडियो देखे है। लिटा के मारा है पुलिस वालों ने। किसी नेता ने एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। हम आए दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। कैसे आए दिल्ली से? दिल्ली से पैदल आए, वहाँ से यहाँ तक टैक्सी वाली भी हमने 1000 रुपये की, तो यहाँ तक छोड़ गए हमें। उधर तो हम पैदल आए थे, उधर से यहाँ 1000 में वो बोल रहा था हम आगरा छोड़ जाएंगे। अब पता ही नहीं, आगरा तो बहुत दूर है। मजदूरी मिलती नहीं लोगों को, जो बेरोजगार हैं मिलती नहीं। 2-4 बीघे खेती है तो ना तो उसमें साल भर भरण पोषण कर सकता है, न साल भर खर्च कर सकता है, तो इसलिए मजदूरी करने निकलना तो पड़ता है। मर्द लोग बाहर ही होता है उधर का? मर्द लोग बाहर होता है, औरतें भी बाहर है साहब। हाँ, औरतें भी बाहर हैं। अब ये एक ये औरत है, एक वो औरत है, ये सब MP के। एक साहब डिलीवरी भी वाली भी, बच्चे वाली भी ये बैठी है, इसको तो भारी तकलीफ है। सर मेरे को तो 2-3 महीना 20 दिन काम किया था सर, इसके बाद लॉकडाउन लग गया। बस बैठे बैठे सर खा रहे हैं, बस वो भी पैसा ख़त्म हो गया सर। अब पैसा भी नहीं सर बचा था, इसलिए गांव जा रहे हैं सब। मैं सर आऊँगा नहीं अब कभी। अपन खेती बाड़ी सर करूँगा, 2-3 बीघा है सर, वो तो वही मैं अपना करूँगा, वहीं पे मजदूरी करूँगा अपने ही देश में। For us, the day was challenging. The heat wave was strong, and the bicycles also got into trouble. So this is the second time Shudin's gear has given up on him, and Shudin not giving up on his bike. And he's trying very hard with his. Yep. Yeah, so nice actually. Okay. कैसे हो जाते हैं पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे। My God, like the day couldn't get worse. We still haven't reached Koshi. My tire got punctured. Again, another cycle mishap and another bunch of fantastic people who are really helping us. All of them have really helped us for the last hour or so. We have been struggling. Shrutin is the real Superman over here, by the way. Yeah, so yeah, it's been a sucky day. The day is 45 degrees hot, and Divya, he doesn't want to speak at all. Yeah. This was the day we really started feeling how difficult it was for anyone to be outside, especially on foot. And wherever we stopped, locals were telling stories of even more desperate migrants. जब उनके पैरों को देखा था हमने, ये माथ पलटा हुआ था धूप से। मतलब नंगा पैर भी, उनके पैरों को देख करके नहीं मैं 1 घंटे रोया। क्या अगर मेरे लाख और मेरे बस में होता तो मैं अपनी चमड़ी के भी जूते बना के पहना देता हूँ। भारी तकदीर, क्या वो घर से बेघर हुए, उसके बाद में भी उनको सहारा नहीं मिला और ना खाना मिला उनको। वो यहाँ रोए बेचारे, भाई आज मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। कोई कह रहा भाई मैं 2 वक्त से भूखा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ। हम उनके साथ बराबर से रोए, उनको लाए लुबा करके नहीं, यहाँ बैठा ला, पानी पिलाया, मुँह दिलाया, खाना खिलाया। करीब कितने लोग ऐसे जमा हुए होंगे मंडी पे वहाँ पे? हम अंदाजा करके चल रहे हैं 1500 आदमियों के लगभग।
And that was the reason these men had been distributing food in the migrant hub of Kosi Kalan. Now we are traveling with a group of people who are going to distribute food to migrants. कोसी कलान का बिगेस्ट चैलेंज क्या है, मतलब अभी? देखिए, कोसी कलां वैसे तो ये बॉर्डर पे है। यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग हैं ना, वो सभी बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मंडी में बाकायदा प्रशासन लगा है, नगर पालिका लगी है, मैं खुद चेयरमैन होने के बाद भी निरंतर लगा हूँ। लोगों को यहाँ से हम लोग उनके गांव स्थान भेज रहे हैं। पूरे शहर में हमने ये कह रखा है कोई भूखा नहीं सोएगा। हिंदू और मुसलमान भाई दोनों लगे हैं, तो गरीबों की सेवा गरीब ही कर रहा है। कम से कम 5-7 लोग 8-8 लाख लोग यहाँ से गुजर चुका है सड़कों के सहारे। हालात यहाँ बिकट रहे पहले, अब स्थिति संभल गई है। खेती में पूरा फर्क पड़ा है भाई। ये अनाज मंडी है, आज की डेट में अनाज मंडी बंद है। खेत में काम तो खूब बढ़िया हुआ, खेत में कोई मशीन कम चली है। हाँ। और लाई वगैरह ज़्यादा हुई है। लाई वगैरह हाथ से ज़्यादा कटाई हुई है। लेबर बहुत मिली है। लेबर बहुत मिले? लेबर बहुत मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? ये सब बाहर से मजदूर आए हैं, दिल्ली से वगैरह से जो काम करते थे, अब गाँव में आ गए। अब गाँव में क्या करेंगे? लाई कर लो, मशीन निकाल लो, सब मजदूरी काम करके कृषि का काम कर रहे हैं। So we are finally going to reach Mathura, and so thanks to these people. Yep, we are doing. They are the ones. They are our saviors today. They helped us in everything today. So we're gonna see you on the other side. Let's start from Mathura. I'm in वृंदावन right now. गांव के अंदर 90% लोग इस तुलसी माला से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आज की जो तारीख है, हमारी यथास्थिति को बहुत डाउन चल रही है। हमारे माल को कोई नहीं ले रहा है। अभी यही समझ में नहीं आ रहा हम लोग को किस तरीके से स्टार्ट करना है। अभी तो सब काम मार्केट पूरा बंद पड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ। देखिए, जब ऊपर से पैसा नहीं आएगा तो कारीगरों को कैसे मिलेगा? सर, जब कोरोना था तो हमारा कुछ दिन तक अखाड़ा बंद था। कोरोना हटने के बाद हम लोगों ने फिर जोर चालू करवाई। लगभग देखा जाए तो मेरे हिसाब से 60 से 70 लाख रुपए पहले का ESI का लॉस है। गेहूँ का बिक्री किया, अभी को तो कोई बिक्री नहीं। फसल तो बढ़िया हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से मिट्टी खराब है। कितने की बिक्री है लौकी? लौकी ₹1 किलो। तो आप लोगों का घर कैसे चल रहा है? अब ऐसे चल रहा है,